So, okay, good. Now I hope I'm audible also. Okay, so just give me a few seconds, then I'll start. Okay, ठीक है. चलिए. So I hope presentation is also visible clearly, and we can start without any problem. Now every problem from my side is solved. So we were studying the last chapter, not actually the last, but the last from your textbook, that is space missions. Okay, we have covered some syllabus, and our next topic is solved examples. Okay, so example first. Suppose the orbit of a satellite is exactly 35,780 kilometers above the Earth's surface. Determine the tangential velocity of the satellite. Now, what is the tangential velocity? The velocity at which the satellites travels in space, or it revolves around the earth with the speed. मतलब कि जिस स्पीड के साथ वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं. टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था. आप लोगों को याद है नहीं है पता नहीं मुझे, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए. दिस इज द फॉर्मूला. V is equals to under root gm divided by r plus h. Now g is what? G is a gravitational constant. M is mass of earth. Capital R is radius of earth, and h, small h, is the height of satellite above the earth's surface. Okay, so these are the parameters for this formula. So if we put all the values, then what we will get? We will get the tangential velocity. So if you observe the formula, there is only one variable in this formula. Which variable is that? That is height. Okay, h is the only variable thing. We cannot change the gravitational constant, neither we can change the mass of earth or radius of earth. These three things cannot be changed. Okay, only the variable thing is h, that is height of the particular thing from the earth's surface. So we have the value of g, that is 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of earth is 6 multiplied by 10 raised to the power 24 kgs. This is a mass of earth. Okay, you should remember mass of earth and radius of earth. Radius of earth is 6,400 kilometers. That is radius. Okay, so it can be written like 6.4 multiplied by 10 raised to the 6 meters. So ये conversion जो है किलोमीटर का मीटर में, ये भी आपको आना चाहिए. So height is given. Height is 35,780 kilometers. So just put all the values in the formula and you will get the answer, that is this one. Okay, सारे values formula में रखिए, one by one calculate कीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, that is 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड्स. मतलब कि 3 किलोमीटर जा रहा है सैटेलाइट. कितने देर में? 1 सेकेंड में. दैट सैटेलाइट इज ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर्स. okay, in space, and the satellite is, or the satellite is at the height of 35,780 kilometers above earth's surface. Now second example is there. In the previous example, how much time the satellite will take to complete one revolution around the earth. ठीक है, सो अभी देखिए ये अर्थ है. अर्थ मैंने थोड़ी सी छोटी ड्रॉ की है. ओके, ये जो ऑर्बिट है, दैट इज द ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट. the orbit should be either elliptical or circle. This orbit is neither elliptical nor circle, but you have to consider that this is the height of that, sorry, orbit of that satellite. Our satellite is here. okay, जो सैटेलाइट हमने पहले एग्जांपल में कंसीडर किया था, उसी एग्जांपल से हम इस सैटेलाइट को पकड़ रहे हैं. उस सैटेलाइट के स्पीड कितनी है? स्पीड इज 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड है. इस स्पीड से वो सैटेलाइट ट्रैवल कर रहा है इन इट्स ऑर्बिट.
So next question is what? How much time the satellite will take to complete one revolution around the earth? मतलब कि इस सैटेलाइट को घूम के यहां से लेके यहां पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, सो देखिए, थोड़ा सा अगर हम दिमाग यहाँ पे लगाए, सो व्हाट वी कैन गेट, सी, ये जो पाथ ट्रैवल कर रहा है दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट, हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सो सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो पाथ है दैट इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ द और सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो सर्कमफरेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वी हैव द फॉर्मूला दैट इज 2πr। व्हाट इज आर? आर इज कैपिटल आर प्लस एच, मतलब कि ये जो हाइट रहेगी, ये हाइट सरफेस से हाइट प्लस अर्थ की रेडियस, ये रहेगी हमारी रेडियस, एंड 2πr फॉर्मूला से हम इस पाथ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ना हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, टाइम। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, सो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। सो स्पीड को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, सो डी डिवाइडेड बाय एस विल बी टी। ठीक है, तो हमें टी निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है, हमारे पास यहाँ पे स्पीड है, हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, डिस्टेंस इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट। सो देखिए, सर्कमफरेंस हमने यहाँ पे लिया 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी वेलोसिटी। सॉरी, हमें क्या निकालना था, ओके, टाइम ही निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे नीचे चेंज किया है। सी, time is equals to, this is the distance, that is 2πr divided by v, that is the velocity given. So 2π is as it is, that is constant, r is constant, that is 6400, that is the radius of earth, and this is the height of that orbit from the surface of earth. So that will be total radius, that is r को हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल r प्लस h से, एंड v that is डिवाइडेड बाय v that is 3.08। सो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो इतने सेकेंड्स लगेंगे उस सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए। अगर हम इसे कन्वर्ट करें सो इट विल बी 23 hours 54 minutes। Hence the velocity is taken in the unit of kilometers per second. The radius is also taken in the unit of kilometers। ठीक है, सो देखिए इसको टाइम कितना लग रहा है, 23.54 मिनट्स, मतलब कि लगभग एक दिन ही लग रहा है। अर्थ को भी खुद के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक दिन ही लगता है। मतलब दिस सैटेलाइट इज नथिंग बट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप लोगों को पता है व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, किस किस को पता है बताइए, रेज योर हैंड्स। यहाँ पे हैंड रेज करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, अब अगर आप मोबाइल में देख पा रहे हैं तो आपके मोबाइल में माइक के बटन के साइड में रेज योर हैंड का ऑप्शन नहीं है। सी, नहीं है, ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हम मैंने बताया था ना आपको आपके क्लास लास्ट क्लास में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या रहता है कि मान लीजिए कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं इंडिया से। ओके, सो वो इंडिया के स्काई में है, सो अर्थ जो है वो 24 आवर्स में रिवॉल्व कर रही है खुद के अराउंड, और वो सैटेलाइट को भी टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स ही लग रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि वो सैटेलाइट जो है वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही दिखाई देगा हमें, बराबर। वो हमें हमें ऐसा लगेगा कि वो जो है वो सैटेलाइट घूम नहीं रहा है, वो स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअल में वो घूम रहा है। लेकिन वो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना ट्रेन का, कि मान लीजिए कि आप एक ट्रेन से जा रहे हैं, दूसरी ट्रेन भी सिमिलर स्पीड से जा रही है, तो आपको क्या लगेगा कि साइड की जो ट्रेन है वो एक्चुअल में मूव कर ही नहीं रही है, दैट इज स्टेशनरी। ऐसा मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट। ओके, सो उसी तरह से दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कि वो हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो सैटेलाइट जो है वो घूम नहीं रहा है, दैट इज नॉट मूविंग बट इट इज एक्चुअली मूविंग, एंड दैट इज मूविंग इन अ जियो स्टेशनरी orbits। Okay, now we want to send the satellite in orbit,
So what we need? We need satellite launch vehicles. Okay. So satellite launch vehicles are used to place the satellites in their specific orbits. The functioning of satellite launch vehicle is based on Newton's third law of motion. The launch vehicle uses specific type of fuel. देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस में दिया है कि जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रहता है, या फिर क्या कहते हैं हम उसे, व्हाट वी कॉल इट एज, क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, बताइए. डू यू नो द अल्टरनेट नेम फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? हु नोज? एसएलवी. एसएलवी तो उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ. मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसके बाद आप बताएंगे उसका हम उसे क्या कहते हैं. व्हाट इज दिस? रॉकेट. डोंट वी कॉल इट एज अ रॉकेट? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को ही रॉकेट कहा जाता है. ओके. सब लोग सुन रहे हैं ना? लक्ष्य. चलो सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, मुझे सबकी अटेंडेंस एक बार चेक करनी है कि सब लोग सुन रहे हैं या फिर नहीं. लास्ट क्लास में लक्ष्य और एक दो बच्चे थे जो कि सुन नहीं रहे थे. ओके. अभी जो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर. ओके. तन्वी, लावण्या, लक्ष्य, ओम, अथर्व. ओके. समृद्धि इज देयर, दीप ऑल्सो इज देयर. ओके. मतलब आज सब लोग आंसर दे रहे हैं. जो आंसर नहीं देगा उसे लास्ट में आंसर्स पूछे जाएंगे. ठीक है. गुड. तो देखिए एक मैं इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताऊंगा. आपको नोट आपकी बुक में क्या दिया है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो फंक्शन करता है बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज every action has equal and opposite reaction. This is the law, Newton's third law. Correct? Newton's third law मैंने सही बोला कि every action has equal and opposite reaction. ठीक है. तो आपको बुक में ये दिया गया है कि रॉकेट जो है वो इस लॉ पे फंक्शन करता है. ठीक है. सो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही लिखना है. लेकिन फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि रॉकेट जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे नहीं वर्क करता है. इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है उस पे वो वर्क करता है. एंड दैट लॉ इज क्वाइट और लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो डोंट गेट इनटू इट. जस्ट रिमेंबर द नेम दैट, या फिर याद रखिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे रॉकेट वर्क नहीं करता है. अगर आपको कोई आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चन पूछे, सिलेबस में आपको यही लिखना है, मतलब आपको एग्जाम में यही लिखना है क्योंकि बुक में दिया गया है. ठीक है. सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यानी उसको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी. बराबर. सो द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपैंड्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर एंड इट एक्सपेल्ड forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. As this reaction of this, a thrust acts on vehicle which drives the vehicle high into the space. So एक्चुअल में इसका वर्किंग कैसा रहता है कि कुछ फ्यूल टैंक्स रहते हैं, उस फ्यूल टैंक्स में फ्यूल रहता है और कंबस्टन की वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड वो जो फ्यूल है वो फोर्सफुली नोजल से नीचे आता है. नाउ व्हाट इज द नोजल? मान लीजिए कि अगर आपका ये इंजन है. ओके. आपने देखा होगा कि इसी तरह का इंजन रहता है एक रॉकेट को नीचे. बराबर. सो दिस इज नोजल. ओके. सो दिस इज नोजल, द नेक ऑफ दिस इंजन. सो यहाँ से बहुत ही प्रेशर के साथ में वो फ्यूल नीचे आता है और उस फ्यूल को बर्न किया जाता है. सो बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दैट फ्यूल क्या प्रोड्यूस होता है? थर्स्ट प्रोड्यूस होता है. थर्स्ट की वजह से वो जो लॉन्च व्हीकल है या फिर रॉकेट है वो पृथ्वी से लिफ्ट करता है. ओके. हमारे अर्थ के सरफेस से वो लिफ्ट करता है बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट. नाउ व्हाट इज थ्रस्ट? देखिए व्हाट इज थ्रस्ट. सो थ्रस्ट क्या होता है एग्जैक्टली? थ्रस्ट मीन्स द फोर्स दैट इज अप्लाइड अगेंस्ट द अर्थ. मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे थर्स्ट कहते हैं. नाउ वेयर यू कैन फोर्स द थर्स्ट? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में फैन है. बराबर. सो फैन को अगर आप फुल स्पीड में करेंगे तो क्या होगा कि
इफ यू मतलब कि अगर आपका कोई भी रुमाल है या फिर कोई भी कपड़ा अगर आप ऊपर उड़ाएंगे तो वो क्या क्या होगा, फैन की हवा की वजह से वो नीचे आ जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, बराबर। दैट मीन्स द फैन इज प्रोड्यूसिंग थर्स्ट। समझ रहे हो? आपने कभी ड्रोन देखा होगा तो ड्रोन के जो फैंस रहते हैं वो बहुत तेज घूमते हैं, वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से ही वो ड्रोन ऊपर उठ पाता है। हेलीकॉप्टर का एग्जांपल लीजिए। हेलीकॉप्टर का हेलीकॉप्टर हवा में क्यों उड़ता है? बिकॉज द फैन, वो जो हेलीकॉप्टर का फैन रहता है, दैट प्रोड्यूसेस थर्स्ट। मतलब कि किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें हवा में उड़ाना है, सो व्हाट वी नीड थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट चाहिए। सो बर्ड्स जो है, बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हैं हवा में? दे प्रोड्यूस देयर थर्स्ट विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। अगर आपके सर के नजदीक से अगर कोई कौवा चला जाए तो आपको जोर से हवा आना मतलब आप फील कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज थ्रस्ट। So that's how the thrust is produced in rocket, and that thrust is so high that it can lift the rocket from the Earth's surface. The structure of launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of satellite orbit. The fuel of the vehicle also depends on these factors. The fuel forms a major portion of the total weight of the launch vehicle. Thus, the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it. To overcome this problem, launch vehicle with more than one stage are used. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. For example, consider a launch vehicle has two stages. Now, launch vehicle हमें कौन सा चूज करना है? ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके घर से कहीं पे आपके गांव में ही या फिर सिटी में आपको दुकान पे जाना है, सो विच व्हीकल यू विल प्रेफर? यू विल मोस्टली प्रेफर योर बाइसिकल, बराबर। आप बाइसिकल पे जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, बराबर। अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, सो यू विल प्रेफर आइदर मोटरसाइकिल और कार और बस, बराबर। ये व्हीकल आप प्रेफर करोगे। अगर आपको 500-700 किलोमीटर जाना है, सो यू विल प्रेफर व्हाट? यू विल प्रेफर ट्रेन। ओके, अगर आपको फॉर एग्जांपल 10,000 किलोमीटर जाना है, 20,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, देन यू विल प्रेफर एरोप्लेन। ओके, सिमिलरली ये जो लॉन्च व्हीकल रहता है, इस लॉन्च व्हीकल की भी इसी तरह की लिमिटेशंस रहती है, मतलब कि इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स रहते हैं, सारे के सारे लॉन्च व्हीकल सेम नहीं रहते हैं। ओके, सो depending upon the which are the factors that decide the launch vehicle. See, these are the factors: total weight, वेट कितना है, वेट ऑफ सैटेलाइट मतलब कि कितना हेवी सैटेलाइट है। टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, मतलब कि उस सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में लॉन्च करना है, हायर अर्थ ऑर्बिट में या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट में। हायर अर्थ ऑर्बिट यानी कि क्या, बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा वो, तो ज्यादा डिस्टेंस है तो क्या रहेगा, हमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पावरफुल चाहिए रहेगा। अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है, सो वी विल नीड अ लेस पावरफुल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हमें कम पावर वाला रॉकेट लगेगा, बराबर। तो अभी रॉकेट को अगर हमें आसमान में भेजना है, सो वी नीड फ्यूल इन ह्यूज अमाउंट, हमें बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। ओके, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू लेट यू नो, अगर आपको 1 kg का सैटेलाइट 1 kg का सैटेलाइट अगर आपको भेजना है अर्थ, सॉरी, आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, स्पेस में भेजना है, तो आपको कितना फ्यूल लगेगा पता है? यू विल नीड 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल। 1 kg के लिए 15 लीटर्स, 2 kg के लिए 30 लीटर्स, समझ रहे हो? इसी तरह से अगर 100 kg का आपका सैटेलाइट है, 1 क्विंटल का आपका सैटेलाइट है, सो आपको 1500 लीटर फ्यूल लगेगा, 1500 लीटर। उसी जगह पे अगर आपका सैटेलाइट 1000 kg का है, तो सोचिए कितना ज्यादा फ्यूल लगेगा, मतलब कि फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो इफ यू सी एट दिस रॉकेट, तो आपके सैटेलाइट के लिए जो प्लेस है, ये आपका सैटेलाइट यहाँ पे रहेगा। ओके, योर सैटेलाइट विल बी हियर एंड ऑल दिस पोर्शन इज नथिंग बट द फ्यूल टैंक्स, मतलब कि यहाँ सारा फ्यूल ही रहेगा। मतलब
बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा वेट रहेगा उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, बराबर। मतलब कि अगर सैटेलाइट हमारा 100 kg का है तो इतना इतना फ्यूल लगेगा। तो ये जो टैंक्स है, फ्यूल का भी तो खुद का वेट होता है ना। मतलब कि अगर हम 15 लीटर फ्यूल अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका भी कुछ कुछ वेट रहेगा, बराबर। अगर हम 1000 लीटर फ्यूल रॉकेट में भर रहे हैं तो उसका भी तो कुछ वेट रहेगा ना। सो वेट बढ़ता जाएगा। किस किस का वेट बढ़ेगा? एक तो सैटेलाइट का वेट, उसके बाद में वो जो फ्यूल टैंक्स है उस फ्यूल टैंक्स का वेट, उसके बाद में फ्यूल टैंक्स के अंदर जो फ्यूल है उसका वेट। मतलब कि ये जो वेट है ये बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3000 kg का सैटेलाइट भेजना है, सो यू विल नीड अराउंड 200 टन ऑफ फ्यूल। इतना ज्यादा फ्यूल आपको लगेगा। मतलब कि आपका सैटेलाइट, आपका जो रॉकेट है वो बहुत ही हेवी हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द स्टेजेस ऑफ लाइट, स्टेजेस ऑफ रॉकेट। मतलब कि रॉकेट को क्या किया जाता है? स्टेजेस में बिल्ड किया जाता है। नाउ हाउ इट हेल्प, सी, फॉर लॉन्चिंग व्हीकल, फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। देखिए यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्टेज है। नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट। आई विल जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट विल नॉट मिक्स विद द रेड कलर ऑफ दैट रॉकेट। ओके, सी दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या है? फ्यूल टैंक है और इंजन है। दिस imparts a specific velocity to the vehicle and takes it to the certain height. Once the fuel in this stage is exhausted, the empty fuel tank and the engine are detached from the main body of the vehicle and fall either into sea or on a unpopulated land. तो देखिए क्या होता है, इस ये जो स्टेज आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे पहले तो एक इंजन रहेगा नीचे और ये फ्यूल टैंक्स है। ये जो साइड में छोटे छोटे रॉकेट दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। तो ये क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इनका क्या काम होता है कि अभी शुरू में जब अर्थ पे रॉकेट है तो उसका वेट बहुत ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। तो एक सॉलिड थ्रस्ट देने के लिए, मतलब ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। ओके, सो जब सैटेलाइट एट सॉरी रॉकेट जब कुछ हाइट पे चला जाता है तो यहाँ से इस स्टेज को अलग कर दिया जाता है। ये जो स्टेज है ये अलग हो जाती है। तो एक क्या बचा फिर? ये इतना ही रॉकेट बचेगा। तो यहाँ पे भी एक इंजन रहेगा। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल। तो ये फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई। उसके बाद में एक सेकेंड स्टेज भी है, थर्ड स्टेज भी है, फोर्थ स्टेज भी है। मतलब कि 4 स्टेजेस है तो 4 इंजन रहेंगे। हर एक फ्यूल टैंक के लिए एक इंजन रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द रॉकेट इज बिल्ड। सो आपको समझ में आया कि वो वेट किस तरह से कम करते जाते हैं। अभी देखिए इस टैंक का फ्यूल खत्म हो गया तो इस टैंक को निकाल के फेंक दिया तो क्या हुआ? इस टैंक का जो वेट है वो रॉकेट से हट गया। सिमिलरली दूसरी टैंक अभी यूज हो रही है, दूसरी टैंक का भी फ्यूल खत्म हो गया, ये टैंक भी हमने निकाल के फेंक दी, तो तीसरी टैंक का फ्यूल यूज होगा। सो इस तरह से छोटा छोटा होता जाता है रॉकेट। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो रेड में है दैट इज सेकंड यूजिंग लिक्विड फ्यूल, और जो ग्रे कलर में है दैट इज सॉलिड फ्यूल। सो सॉलिड फ्यूल में और लिक्विड फ्यूल में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड फ्यूल जो है वो मोस्टली फर्स्ट स्टेज में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स अ इनिशियल थ्रस्ट, मतलब कि जो ज्यादा पावर की जरूरत है रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए अर्थ के सरफेस से, वो मिलता है सॉलिड फ्यूल से। सॉलिड फ्यूल का एक डिसएडवांटेज क्या है कि सॉलिड फ्यूल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ रहे हो किस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी जो मोटरसाइकिल है, ओके, मोटरसाइकिल में विच फ्यूल इज यूज्ड? लिक्विड फ्यूल इज यूज्ड, बराबर। पेट्रोल यूज किया जाता है ना, बराबर। तो आपको जब जरूरत है तब आप मोटरसाइकिल शुरू कर सकते हो, चला सकते हो, और बाद में आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने दिवाली में कभी रॉकेट उड़ाया है? अभी दिवाली हो गई, आपने रॉकेट तो उड़ाया होगा दिवाली में। तो एक बार अगर आप उस रॉकेट को जला दें, सो कैन यू कंट्रोल दैट? कैन यू कंट्रोल दैट? आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं अभी मैं थोड़ी हाइट पे ले जाके उसे रोकता हूं और बाद में फिर से मैं जला के उसे फिर से उड़ाऊंगा? ऐसा नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि उस रॉकेट में क्या है? उस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल है, बराबर। जिसे आप दारू गोला कहते हैं ना, वो चमकी कलर का रहता है, दैट इज सॉलिड फ्यूल।
सो सॉलिड फ्यूल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहीं पे लिक्विड फ्यूल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें रॉकेट को कंट्रोल करना है, सो वी विल नीड लिक्विड फ्यूल एज वेल एज सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लिक्विड फ्यूल को जो हमें कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें कहीं पे रॉकेट ऊपर स्पेस में जाने के बाद में बंद करना पड़ता है, तो बंद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फ्यूल अगर रहेगा तो नहीं होगा। सो ये जो सॉलिड फ्यूल की स्टेज है वो तो निकल गई। फिर से सेकंड स्टेज कौन सी है? रेड वाली जो है वो लिक्विड फ्यूल की स्टेज है। सो दिस कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब इसे ऑन या फिर ऑफ किया जा सकता है। ये स्टेज चली गई, दिस इज अगेन सॉलिड फ्यूल। ये स्टेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ये इग्नाइट कर दिया हमने, ये जला दी स्टेज, तो फिर ये जो फ्यूल है वो खत्म होने के बाद ही हम इसे डिटैच कर सकते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है दैट इज ऑफ लिक्विड फ्यूल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पीएसएलवी। पीएसएलवी इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मेड बाय आईएसआरओ। ये जो रॉकेट है ना, दैट इज इन वर्किंग कंडीशन इन आवर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पीएसएलवी है। ओके, सो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो टैंक है, फ्यूल टैंक डिटैच होने के बाद में वो कहां पे गिरती है? दैट लैंड्स इन सी। मतलब कि या तो सी में गिर जाती है, समंदर में गिर जाती है, या फिर किसी अनमैन्ड प्लेस पे गिर जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो इस फ्यूल टैंक के साथ ही एक इंजन भी तो रहता है। इंजन कोई छोटी चीज नहीं है, बराबर। रॉकेट का इंजन है तो बहुत महंगी चीज होता है वो। सो इसी तरह से चार इंजन जो है, तीन चार इंजन हमें क्या करना पड़ता है? समंदर में गंवाने पड़ते हैं। मतलब एक रॉकेट अगर आपको लॉन्च करना है, सो यू आर गोइंग टू लूज फोर इंजन। मतलब वो कभी भी आपको यूज नहीं होंगे, फिर वो समंदर में गिर जाएंगे। समझ रहे हो? सो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो इस डिसएडवांटेज को टैकल करने के लिए अमेरिका ने क्या किया है? नासा ने डेवलप किया है स्पेस शटल। सो स्पेस शटल में क्या होता है? स्पेस शटल को एक व्हाट वी कैन से फ्यूल टैंक भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फ्यूल के टैंक कनेक्टेड रहता है। तो ये फ्यूल टैंक की मदद से ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ इस इमेज को तो आप देख पाएंगे। ये फ्यूल टैंक की मदद से हवा में उड़ान लेगा। ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है साइड में जो छोटे छोटे है ना वो रॉकेट, दीज आर सॉलिड रॉकेट बूस्टर, एसआरबीज, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। सो वो सेपरेट हो जाएंगे, वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, इनमें फ्यूल कम रहता है, वो इनिशियल थ्रस्ट देके खत्म हो जाते हैं, तो उनको डिटैच कर दिया जाता है। सो उसके बाद में वो स्पेस शटल स्पेस में जाने के बाद में ये जो सेपरेशन फ्यूल टैंक है इसका भी सेपरेशन हो जाता है। सो वो सैटेलाइट को लॉन्च करके फिर से अर्थ पे रिटर्न आ सकता है। कौन? स्पेस शटल। स्पेस शटल, कोलंबिया स्पेस शटल के बारे में आपने सुना होगा। कोलंबिया स्पेस शटल वाज रिटर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड आवर इंडियन ओरिजिन कल्पना चावला was there in that space shuttle. Okay, so one accident happened and we as well as the world lost Kalpana Chawla and their crew members. Okay, so Columbia is the name of that space shuttle. उसका एक्सीडेंट हो गया था while returning from the space journey. ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो फ्यूल टैंक्स है ना, ये फ्यूल टैंक्स और इंजन समुद्र में गिर जाते हैं। सो आपने कभी स्पेस एक्स का नाम सुना है? स्पेस एक्स, हैव यू हर्ड अबाउट स्पेस एक्स कंपनी? एलॉन मस्क के बारे में नाम सुना है आपके? एलॉन मस्क का नाम सुना है? ओके, ओम हैज लिसन। ओके, एलॉन मस्क का और स्पेसएक्स का नाम आपने सुना है। सो ओके, लावण्य ने नहीं सुना है। लावण्य और तन्वी, आपका पहला काम आज रहेगा क्लास खत्म होने के बाद में स्पेसएक्स के बारे में जानकारी लेना। ओके, लावण्य ने और तन्वी ने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है जो कि मैंने आपको बताया था ना, तो मैं आपको वो पीपीटी भी दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास। तो स्पेसएक्स का स्पेशलिटी क्या है कि वो जो रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, सो दे रिटर्न द, मतलब कि उनका जो रॉकेट है वो वापस आ जाता है। दे डोंट लूज द रॉकेट। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, आई विल ट्राई टू शो यू द वीडियो ऑफ किस तरह से स्टेजेस सेपरेट किए जाते हैं एंड किस तरह से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। ओके, सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। थोड़ा सा वेट कीजिए।
Okay, so I'm sharing the tab. You can see. I hope you are able to see this. Okay. So this is PSLV rocket itself. ये PSLV ही है, यहाँ पे दिख रहा है जो, ठीक है. So just see how the rocket is launched. So see, these are the solid rocket boosters जो यहाँ पे मैं माउस फेर रहा हूँ ना. And this is a liquid stage. This is again liquid stage. These are solid stages. So the rocket has launched. Okay. So see, it's going. First stage is there, ignited. Okay. See, तो हमें यहाँ पे एक व्यू दिख रहा है. फर्स्ट स्टेज अलग एंगल से व्यू दिख रहा है हमें रॉकेट का. वो जा रहा है विथ वेरी हाई स्पीड. PSLV एक्सेल नाम है इसका. ओके. सो इट इज अगेन गोइंग. फ्यूल अभी भी खत्म नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेज का. Okay, now it's going above the clouds, I think. Or is it going into the space? Still the first stage is working. पहली स्टेज वर्क में है. ओके. सो सी, पहली स्टेज खत्म हो गई, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स निकल गए, पहली स्टेज भी निकल गई. अभी रॉकेट छोटा हो गया, देखिए. ओके. सो दूसरी स्टेज जल गई अभी. यू कैन सी हियर दैट इज गोइंग अबव द अर्थ. ओके. You can zoom in your screen. Okay, so you can see that properly. See again, ये स्टेज भी खत्म हो जाएगी. यहाँ पे एक इंजन है. ओके, जिसकी वजह से ओके ये भी स्टेज खत्म हो गई. नाउ दैट स्टेज अगेन हैज सेपरेटेड. सी हाउ द स्टेज इज सेपरेटेड. You can see. See, that stage has separated. Now the next engine has ignited. Now rocket कितना छोटा हो गया देखिए अभी, बहुत छोटा हो गया है. आफ्टर दैट उसका जो कैप है, सैटेलाइट का कैप, वो भी निकल जाएगा एक बार एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया. सो दिस इज कैप फॉर सैटेलाइट. ओके. एटमॉस्फेयर के बाहर जिसे कि फेयरिंग कहा जाता है कैप को. सो दिस इज सैटेलाइट. ओके. This is a solid stage. If you remember, this is a solid stage. There is again one stage, that is liquid stage here, the last stage. Okay, so ये भी खत्म हो गया. And yeah, this is the liquid stage and this is the final stage. Okay, so इसका फ्यूल खत्म होने के बाद में इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा इस ऑर्बिट में. ठीक है. सो वो जो स्टेजेस सेपरेट हुई है ना, वो स्टेजेस सेपरेट होके कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगी. दे विल फॉल समवेयर इन द सी और समवेयर एल्स. ओके. सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स एंड आई विल शो यू द रीयूजेबल रॉकेट. जैसे कि मैंने आपको बताया ना स्पेसएक्स, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से रॉकेट एक सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस किस तरह से आता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको. ओके. जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. सी, सी आफ्टर. ओके. Sorry, this is not the correct video. Just give me a few more seconds and then I will show you the proper video. Okay. Okay. सी, यहाँ पे एक रॉकेट जा रहा है ऊपर, उसके साइड में सॉलिड रॉकेट बूस्टर से, वो जो साइड में जो है ना, वो फ्यूल टैंक सी है.
सो यहाँ पे जो रॉकेट पे जो कैमरा है वहां से हमें ये व्यू दिख रहा है कि किस तरह से वो डिटैच हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है ये, इस जगह पे वो मेन रॉकेट से कनेक्टेड है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। सो वंस दे गेट सेपरेटेड देन वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस। ओके, सी सी दे आर रिटर्निंग हियर, यू कैन सी हियर। ओके, ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है ना, जो सेपरेट हुए थे उस रॉकेट से, दे आर रिटर्निंग टू द अर्थ and they are again landing. You can see these on board cameras, so they have safely landed. Now they can be reused. Okay, मतलब कि इनको फिर से reuse किया जा सकता है। तो ये रॉकेट आगे चला जाएगा, बाकी बचा हुआ। ओके, चलो ठीक है। So I hope you understand how the rocket works. Okay, everyone enjoyed it? बताइए। Okay, good, ठीक है। So this is how the rocket is launched. Now the launch vehicles are costly because they can be used only once. USA has therefore developed space shuttle which returns to the Earth except for the fuel tank and can be reused multiple in the multiple launches. Okay, always remember the rocket, a type of firecracker used in Diwali, is also sort of launcher. In this rocket, the fuel is ignited using fuse and the rocket is projected into the sky just like satellite launcher. Similarly, if a balloon is blown and released with its end open, the air in the balloon forcefully ejected and balloon is pushed in opposite direction. This can be explained using the Newton's law of motion. ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको रॉकेट का एग्जांपल दिया था, दिवाली वाले रॉकेट का एग्जांपल, सो उसी तरह से ये जो अपना स्पेस वाला रॉकेट है वो भी इसी तरह से यूज करता है। नाउ स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम अर्थ, तो हमने ये तो देख लिया कि सैटेलाइट किस तरह से लॉन्च किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और रॉकेट वी कॉल इट एज। ओके, सो लेकिन लॉन्च करना है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि किस तरह से हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम अर्थ टू सर्टन let us say planet or satellite, natural satellite, that is moon. Okay, so एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आपको एक लाइव डेमो टाइप दिखाई देगा कि उस डेमो में हम क्या करेंगे। what we will do, we will build our own rocket, मतलब कि हम हमारा खुद का एक रॉकेट भी बिल्ड करेंगे in that application, और and then we will launch that rocket from the अर्थ सरफेस। हमें सब कुछ दिखाई देगा एंड एवरी कंट्रोल विल बी इन आवर हैंड, मतलब हमारे हैंड में कंट्रोल रहेगा कि रॉकेट को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रॉकेट जा रहा है, ये हम सब देख पाएंगे। ओके, सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन एंड आई विल शो यू दिस डेमो, बट जस्ट मी मुझे सिर्फ याद दिलाइए। ओके, सो स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब कि अर्थ से दूर जो सेलेस्टियल बॉडीज है लाइक प्लैनेट्स है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ओके, लाइक सन आल्सो। सो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, मिशंस भेजते हैं। ठीक है, इंडिया ने कौन से मिशंस भेजे आपको पता होगा। इंडिया का चंद्रयान 1 था 2008 में, चंद्रयान 2 पिछले साल लॉन्च हुआ था, बराबर। मिशन मंगल भी आपने मूवी देखा होगा 2013 में, मंगलयान भी मंगलयान भी हमने लॉन्च किया है, बराबर। सो मतलब मंगल के लिए और मून के लिए, इन दो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इंडिया ने अभी तक मिशंस लॉन्च किए हैं। लेकिन अगर हम नासा की बात करें तो नासा ने बहुत सारे बॉडीज के लिए, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स के लिए या फिर स्टार्स के लिए मिशंस लॉन्च किए हैं। नासा नासा ने बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए। ओके, वी कैन नॉट कंपेयर नासा एंड इसरो। नासा हैज launched tremendous amount of missions. Now, as we have seen above, artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. However, in the previous standard, we have learned about how the telescopes aboard artificial satellites are used to gather information about various objects in the universe. Similarly, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. In these missions, spacecrafts are sent to nearby objects in the solar system to observe them more closely. The new information
has been obtained from such missions, and it is helping us to understand and creation of the solar system. तो हमने स्पेस मिशंस का जो इम्पोर्टेंस है वो हमने किस डायरेक्शन में देखा है, सिर्फ कि हमारा जो टेलीविजन है या फिर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिसकी मदद से हम ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, सो इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज स्पेस मिशंस. एक सैटेलाइट है वहां पे आसमान में जो कि मेरे मोबाइल से सिग्नल ले रहा है और आपके मोबाइल को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है. ओके, अगेन we have seen the use of space missions for sky observation. हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया कि वो टेलीस्कोप जो है वो आसमान में है और दूर दूर जो गैलेक्सीज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनकी अच्छी सी इमेजेस लेके वो हमें अर्थ पे भेज रहा है. ओके, इनके अलावा भी हम स्पेस मिशंस को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. हाउ यू कैन सी. ओके, आप लोगों का एक टास्क मैं आज के लिए या फिर कल के लिए आपको एक टास्क देता हूं. आपको पता है कि नासा ने एक रोवर लॉन्च किया है ऑन मार्स. रोवर यानी कि क्या? एक ऐसा रोबोट जो कि मार्स के सरफेस पे चलता है. ओके, मार्स का रोवर, उससे क्या क्या नाम, उसका नाम क्या है, पता है किसी को? एनीवन नोज अबाउट द रोवर दैट इज ऑन मार्स सेंट बाय नासा? नो, आपको नहीं पता. नो प्रॉब्लम, ठीक है. आपको पता होना एक्सपेक्ट भी नहीं है क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं है ना इसके बारे में. तो उसका नाम जो है दैट इज क्यूरियोसिटी रोवर. क्यूरियोसिटी. ओके, सो क्यूरियोसिटी रोवर क्या कर रहा है? क्यूरियोसिटी रोवर, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ. क्यूरियोसिटी रोवर इज रोमिंग अराउंड मार्स, मतलब कि वो मार्स में इधर उधर घूम रहा है. और दैट इज सेंडिंग अस द लाइव वीडियो ऑफ मार्स सरफेस, मतलब कि मार्स के सरफेस पे क्या है वो हमें दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ वीडियो कैमराज. तो उसे हमने किस तरह से लॉन्च किया? इन्हीं स्पेस मिशन की मदद से. रॉकेट में उस रोवर को बिठाया, आसमान में भेज दिया, और आसमान में भेजने के बाद में हमने उसे मार्स के ऑर्बिट में भेजा, और मार्स के ऑर्बिट से उसे मार्स के सरफेस पे लैंड कराया. एंड वी आर नाउ एबल टू सी वीडियो, लाइव वीडियो ऑफ मार्स. यूट्यूब पे अगर आप डालोगे, क्या डालोगे यूट्यूब पे? क्यूरियोसिटी रोवर लैंडिंग या फिर क्यूरियोसिटी लाइव इमेजेस, तो आपको दिखाई देगा. ओके, तो मैं आपको क्यूरियोसिटी की लैंडिंग यहाँ पे दिखाई देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ. ओके, सो सी क्यूरियोसिटी किस तरह से लैंड हुआ था. सो दिस इज क्यूरियोसिटी रोवर गोइंग टू द मार्स फ्रॉम अर्थ सरफेस. ओके, सी स्पेस में जो है फ्यूल बहुत ही कम लगता है, इसलिए यहाँ पे इग्नाइट नहीं दिख रहा है. ओके, सो दिस इज द rocket that is taking curiosity to the Mars. So now that, so rover is in this cap, so now it is going towards Mars, so it is on its way to Mars. Okay, it has left the earth. Okay, so it has reached near the Mars. This is Mars surface. Okay, so this is the rover is inside this. This is not the rover. Rover has wheels. See, it is going towards Mars. It is going with a very high speed. And this is the rover. See, this is the rover. This is landing on the surface of Mars. Actually, this is an animation. Okay, we cannot capture the live landing of Curiosity. See, this is a drone. This is drone, and that is actual rover. So it is safely landing a rover on the surface of Mars. Now it has landed. Okay, so the work of this drone is completed. It is no more needed. So what it will do? It will just roam around the Mars surface.
घूमेगा इधर उधर मार्स पे, देखेगा, हमें वीडियोस भेजेगा कि मार्स पे क्या क्या है। मार्स के बारे में हमारे पास जो कुछ भी जानकारी है, ज्यादातर जानकारी बिकॉज ऑफ दिस रोवर दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ओके, सो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, इसमें कैमराज है जो कि हमें इमेजेस भेजते हैं। ओके, सो बाकी जो है रोवर, इस रोवर की जो लाइव फुटेज है, लाइव फुटेज में भी मैं आपको दिखा दूंगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। सो लाइव इमेजेस वो दिखाता है। ओके, सो इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। सी, okay, if you can see, this is the live footage from Mars right now. You can see the live symbol here. It is a live and it is from rover that is Curiosity. Okay, so Mars के सरफेस पे अभी यहाँ पे वीडियो ले रहा है। ठीक है, सो आप कभी भी यूट्यूब पे जाएंगे, डालेंगे क्यूरियोसिटी रोवर लाइव, सो आपको लाइव इमेजेस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो अभी बहुत ही स्लोली वीडियो लेगा क्योंकि उसका काम ही वही है, वो दिन भर वही काम करता रहता है। See, these are mountains on the surface of Mars. This seems quite boring, but it is very interesting. सोचिए किस तरह से उसे वहां पे ले जाया गया होगा, किस तरह से वो वीडियोस ले रहा है, किस तरह से हमें सेंड कर रहा है। Okay, so that's it. You can watch that in your spare time. Okay, so for such missions, the spacecraft must escape the Earth's gravitational force to travel into outer space. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than that the escape velocity of the Earth. As we have learned in the chapter of gravity, escape velocity on a planet can be obtained using the following formula. Now, the main word, that is escape velocity. What is escape velocity? The velocity at which we can beat the earth's gravity, मतलब कि अगर हमें अर्थ का सरफेस छोड़ना है, so we have to move with a certain velocity and that velocity is escape velocity. escape velocity के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने पहले चैप्टर में ही देखा है, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर था वहां पे हमने देखा है। और अर्थ की जो escape velocity है दैट इज 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अगर हम इस स्पीड से आसमान में उड़ने लगे, सो वी कैन एस्केप अर्थ वेलोसिटी। ओके, हम अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जा सकते हैं। दस इफ अ स्पेसक्राफ्ट is to escape the earth's gravitational force, to travel to the outer space it must have minimum velocity of 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी छोड़ के बाहर जाना है तो उसे इस स्पीड से जाना पड़ेगा। ठीक है, सो बाकी का जो चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टर, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तन्वी ने और लावण्या ने पीपीटीज प्रिपेयर की है। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू द पीपीटीज। बाकी लोगों ने जिन्होंने पीपीटीज नहीं की है उनके लिए मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आप लोग आराम से पीपीटीज प्रिपेयर कीजिए। ओके, जब भी आपको समय मिलेगा तब आप प्रिपेयर कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, कोई जल्दी नहीं है। मैंने इनको भी बताया था कि कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिया, दैट इज वेरी वेरी गुड। ओके, सो आई विल जस्ट फर्स्ट शो यू द पीपीटी ऑफ लावण्या। ओके, सो सी, this is her ppt and I cannot zoom more than this. Okay, so she has given few contents. Okay, contents के बाद में क्या है, what is space, so this is a ppt you can observe. Okay, उसके बाद में missions, lunar, interplanetary, astronomy, आफ्टर दैट लूनार मिशंस का एक उन्होंने फोटो भी डाला है, चंद्रयान 1 का यहाँ पे इमेज है, उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन की भी यहाँ पे इमेज और इंफॉर्मेशन है, एस्ट्रोसैट की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्होंने डाली है, एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स है कुछ। ओके, सो इसरो की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, ये इन्होंने लिखा है। यहाँ पे आर्यभट्टा की एक इमेज है, आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज बिल्ट बाय ISRO. ओके, so first such satellite launching vehicle, that is SLV-3 was there. Okay, Abdul Kalam sir was the head of that project.
After that, ISRO has few achievements, that is they have launched 104 satellites, 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे at a single time on 15th of February 2017 in PSLV C37. ओके, सो सरस्वती, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिलेशन का ग्रुप यहाँ पे दिखाया है इन्होंने. ओके, गैलेक्सी क्लस्टर है वो. उसके बाद में IRS है. सो बहुत अच्छे से इन्होंने पीपीटी बनाई है. दिस इज राकेश शर्मा, द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस, not to moon. Okay, so advanced planning and future missions. Aditya 1, that is mission to sun. Mars orbiter mission 2. Chandrayaan 2. Okay, so these are the slides that Lavanya has prepared and I like them all. Okay, very good. So बाकी लोग भी सीखिए लावण्य से कुछ और आप भी बनाइए. ओके, सो अभी तन्वी की पीपीटी दिखाना बाकी है, बाकी लोग रुकिए, जाना नहीं है अभी. ओके, सो तन्वी की पीपीटी आप लोगों को दिखा देता हूँ. जस्ट वेट, सब लोग पीपीटी देख के जाएंगे. तो सी, इसरो की स्टैब्लिशमेंट, विक्रम साराभाई के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्फो है. ओके, सी दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कलाम टू द इंडियन स्पेस रिसर्च. किस तरह से हमारा फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड किया गया, किस तरह से उसे ट्रांसपोर्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ साइकिल एंड बुलक कार्ट, वो यहाँ पे इन्होंने डाला है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, दैट इज SLV-3. अब्दुल कलाम वाज द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस मिशन और प्रोजेक्ट. यहाँ पे इसरो की ब्रांचेस कौन सी है यहाँ पे इन्होंने ये भी नोट किया है, दैट इज वेरी गुड. दिस इज व्हाट PSLV C37. हमने PSLV आज ही सीखा कि PSLV में क्या क्या होता है. ओके, सो इन फ्यूचर तो यहाँ पे ठीक है. ये मार्स के लिए मंगलयान 2 है, वीनस के लिए इंडियन वेन्यूजन ऑर्बिटर मिशन 1 है, जुपिटर के लिए उसका नाम अभी डिसाइड करना बाकी है. ओके, सो किस तरह से उन्हें लॉन्च किया जाएगा, GSLV Mark 3 से या फिर GSLV Mark 2 से, PSLV से. ओके, सो ISRO का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, कितना उन्होंने अर्निंग किया है. ओके, सो ये भी यहाँ पे तन्वी ने लिखा है. एंड द लास्ट साइड, दैट इज थैंक यू स्लाइड. ओके, सो वेरी नाइस PPT is made by both of you. Okay, I like them both and I hope remaining people will also take interest and make such PPTs as per their convenience. Okay, I hope everyone will make it. PPT कैसी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए वो बनाने में. ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आपकी मिस्टेक निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ आपके PPT में. यू आर जस्ट ट्राइंग एंड दैट इज वेरी वेरी नाइस थिंग, वेरी गुड थिंग. ओके, सो आप बना सकते हैं. वेरी गुड. सो चलिए 4 मिनट बाकी है आज के लिए. आई थिंक दैट इज इनफ. सो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू सी, आपको स्पेसएक्स के बारे में सर्च करना है. ओके, उसके बाद में क्या सर्च करेंगे आप, क्यूरियोसिटी के बारे में सर्च करेंगे, क्यूरियोसिटी रोवर. ठीक है, इन 2 चीजों के बारे में आप सर्च कीजिए. अपने चंद्रयान 2 के बारे में सर्च कीजिए. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको. चंद्रयान 2 में एक लैंडर था और एक रोवर था, किसको पता है, लैंडर एंड रोवर किसको पता है. ओके, ओम को पता है, अथर्व को नहीं पता है. तो हमारा जो चंद्रयान 2 था उसमें एक लैंडर था और एक रोवर था. तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लैंडर है जो कि मून के सरफेस पे लैंड होने वाला था वो क्रैश लैंड हो गया, मतलब कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई. ओके, सो हमारा उससे कनेक्शन टूट गया और हमने एक लैंडर और एक रोवर खो दिया. अगर वो रोवर रहता तो 14 दिन के लिए वो मून के सरफेस पे घूमता लाइक क्यूरियोसिटी एंड इट वुड हैव गिवन अस वेरी मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो इसका भी एक एनिमेटेड वर्जन यूट्यूब पे अवेलेबल है. ओके, सो चंद्रयान 2 के बारे में अगर आप इन्फो निकालोगे यूट्यूब से तो आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो डू दीज थिंग्स एज पर योर इंटरेस्ट, कीप स्टडिंग and that's it for today. Thank you, bye bye, we'll see you in the next lecture. Bye bye, leave the class. Okay, that's it, bye bye, chalo. Okay.